Phrasal verbs 91 to 100. Figure out, to understand or solve. Meaning समझना या हल करना. I need to figure out how to fix my computer. मुझे ये समझने की ज़रूरत है कि मैं अपने कंप्यूटर को कैसे ठीक करूं. Can you figure out the answer to this math problem? क्या आप इस गणित की समस्या का हल समझ सकते हैं? We need to figure out a way to save more money. हमें अधिक पैसे बचाने का एक तरीका समझना होगा. She figured out that the meeting was scheduled for tomorrow. उसने समझ लिया कि बैठक कल के लिए निर्धारित है. After a lot of thought, he finally figured out what he wanted to do. बहुत विचार करने के बाद, उसने अंततः समझ लिया कि वह क्या करना चाहता था. It took me a while to figure out how to use this new software. मुझे इस नए सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे करना है, ये समझने में कुछ समय लगा. We need to figure out where to go for vacation this year. हमें ये समझने की आवश्यकता है कि इस साल छुट्टियों के लिए कहाँ जाना है. The detective figured out the mystery behind the missing money. जासूस ने खोए हुए पैसे के पीछे के रहस्य को समझ लिया. I couldn't figure out why the machine wasn't working. मैं यह नहीं समझ सका कि मशीन क्यों नहीं चल रही थी. They figured out a plan to improve their sales. उन्होंने अपनी बिक्री में सुधार के लिए एक योजना समझ ली. Set aside, to reserve or save for later. Meaning बाद के लिए सुरक्षित रखना या आरक्षित करना. I will set aside some money for our vacation. मैं हमारी छुट्टी के लिए कुछ पैसे सुरक्षित रखूंगा. Please set aside some time for our meeting next week. कृपया अगले हफ्ते की हमारी बैठक के लिए कुछ समय आरक्षित करें. She decided to set aside her personal feelings during the discussion. उसने चर्चा के दौरान अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को सुरक्षित रखने का निर्णय लिया. We should set aside a portion of our income for savings. हमें अपनी आय का एक हिस्सा बचत के लिए सुरक्षित रखना चाहिए. He set aside his work to help his friend. उसने अपने काम को सुरक्षित रखकर अपने दोस्त की मदद की. The teacher asked the students to set aside their phones during the exam. शिक्षक ने छात्रों से परीक्षा के दौरान अपने फोन को सुरक्षित रखने के लिए कहा. We need to set aside our differences and work together. हमें अपनी भिन्नताओं को सुरक्षित रखकर एक साथ काम करने की आवश्यकता है. They set aside some funds for community projects. उन्होंने सामुदायिक परियोजनाओं के लिए कुछ फंड सुरक्षित रखे. She set aside her book to answer the phone. उसने फोन उठाने के लिए अपनी किताब को सुरक्षित रख दिया. He always sets aside time for exercise every day. वह हमेशा हर दिन व्यायाम के लिए समय सुरक्षित रखता है. Stay up, to remain awake. Meaning जागते रहना. I tried to stay up late to finish my project. मैंने अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए देर तक जागने की कोशिश की. She can't stay up past midnight without feeling tired. वह आधी रात के बाद जाग नहीं रह सकती बिना थके. We decided to stay up for the fireworks on New Year's Eve. हमने नए साल की पूर्व संध्या पर आतिशबाजी के लिए जागने का निर्णय लिया. He usually stays up late on weekends to watch movies. वह सामान्यतः सप्ताहांत पर फिल्में देखने के लिए देर तक जागता है. I couldn't stay up during the long lecture. I fell asleep. मैं लंबे व्याख्यान के दौरान जाग नहीं रह सका, मैं सो गया. She stayed up all night studying for her exams. उसने अपनी परीक्षाओं के लिए रात भर जागते हुए पढ़ाई की. The kids wanted to stay up for the party, but they were too tired. बच्चे पार्टी के लिए जागना चाहते थे, लेकिन वे बहुत थके हुए थे. It's hard to stay up when you have to wake up early the next day. जब आपको अगले दिन जल्दी उठना होता है, तो जागते रहना मुश्किल होता है. I love to stay up and read my favorite books. मुझे जागते रहना पसंद है और अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ना. They stayed up chatting until the early hours of the morning. वे सुबह के पहले घंटों तक बात करते हुए जागते रहे. Put off, to delay or postpone. Meaning विलंब करना या स्थगित करना. I had to put off the meeting until next week. मुझे बैठक को अगले हफ्ते तक स्थगित करना पड़ा. She put off doing her homework until the last minute. उसने अपना होमवर्क आखिरी क्षण तक विलंबित कर दिया. Don't put off your dreams, start working towards them today. अपने सपनों को विलंबित न करें, आज ही उनकी ओर काम करना शुरू करें. The event was put off due to bad weather. खराब मौसम के कारण कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया.
He often puts off important tasks until they become urgent. वह अक्सर महत्वपूर्ण कार्यों को विलंबित करता है जब तक वे जरूरी नहीं हो जाते. We can't put off this decision any longer, we need to act now. हम इस निर्णय को और विलंबित नहीं कर सकते, हमें अब कार्य करना है. I decided to put off my trip until I have enough money. मैंने अपनी यात्रा को तब तक स्थगित करने का निर्णय लिया जब तक मेरे पास पर्याप्त पैसे न हो. They put off the launch of the new product for several months. उन्होंने नए उत्पाद की लॉन्च को कई महीनों के लिए स्थगित कर दिया. She put off cleaning the house until she had company. उसने घर की सफाई को तब तक विलंबित किया जब तक उसे मेहमान नहीं मिले. Putting off tasks only makes them more stressful later. कार्यों को विलंबित करना केवल बाद में उन्हें और अधिक तनावपूर्ण बना देता है. 5. Get down, to lower oneself or focus on something. मीनिंग खुद को नीचे लाना या किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना. I had to get down to clean the floor. मुझे फर्श साफ करने के लिए नीचे झुकना पड़ा. Let's get down to business and start the meeting. चलो काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और बैठक शुरू करते हैं. He needs to get down and study for his exams. उसे नीचे आकर अपनी परीक्षाओं के लिए पढ़ाई करने की जरूरत है. Please get down from the table, it's not safe. कृपया मेज से नीचे उतरें, ये सुरक्षित नहीं है. We need to get down to the details of the plan. हमें योजना के विवरण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. The kids were told to get down and play outside. बच्चों को बताया गया कि वे नीचे आएं और बाहर खेलें. She got down on her knees to tie her shoelaces. उसने अपनी जूतियों के फीते बांधने के लिए घुटनों के बल बैठ गई. I can't concentrate until I get down to work. मैं तब तक ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता जब तक मैं काम पर ध्यान नहीं देता. He got down from the ladder after finishing the job. उसने काम खत्म करने के बाद सीढ़ी से नीचे उतर गया. Let's get down to figuring out how to solve this problem. चलो ये समझने पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए. Light up, to illuminate or brighten. मीनिंग रोशन करना या चमकाना. The fireworks will light up the night sky. आतिशबाजी रात के आसमान को रोशन करेगी. Her smile can light up a room. उसकी मुस्कान कमरे को रोशन कर सकती है. The street lights light up the path during the night. स्ट्रीट लाइट्स रात में रास्ते को रोशन करती हैं. The children's eyes light up with excitement during the festival. त्योहार के दौरान बच्चों की आंखें उत्साह से चमक उठती हैं. He used a flashlight to light up the dark room. उसने अंधेरे कमरे को रोशन करने के लिए एक टॉर्च का उपयोग किया. The sunrise will light up the entire valley. सूर्योदय पूरे घाटी को रोशन करेगा. A good idea can light up the way to success. एक अच्छा विचार सफलता के रास्ते को रोशन कर सकता है. The stars light up the night sky beautifully. तारे रात के आसमान को खूबसूरती से रोशन करते हैं. Her enthusiasm lighted up the entire team. उसकी उत्साह ने पूरे टीम को रोशन कर दिया. They decorated the house to light up the festive season. उन्होंने त्योहार के मौसम को रोशन करने के लिए घर को सजाया. Pull off, to succeed in doing something difficult. मीनिंग कुछ कठिन करने में सफल होना. She managed to pull off a surprise party for her friend. उसने अपने दोस्त के लिए एक सरप्राइज पार्टी करने में सफलता पाई. It was a risky move, but he pulled it off brilliantly. यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन उसने इसे शानदार तरीके से किया. I can't believe you pulled off such a great performance. मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने इतनी शानदार प्रस्तुति दी. They pulled off the project despite the tight deadline. उन्होंने कड़ी समय सीमा के बावजूद परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया. She always pulls off her goals, no matter how challenging. वह हमेशा अपने लक्ष्यों को हासिल करती है, चाहे वे कितने भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो. It was hard to pull off the stunt, but he did it. स्टंट करना मुश्किल था, लेकिन उसने किया. He pulled off the negotiation successfully. उसने बातचीत को सफलतापूर्वक किया. They pulled off a last-minute win in the game. उन्होंने खेल में अंतिम क्षण में जीत हासिल की. She pulled off a great idea for the presentation. उसने प्रस्तुति के लिए एक शानदार विचार प्रस्तुत किया. Pulling off this event will require a lot of teamwork. इस आयोजन को सफल बनाना बहुत अधिक टीमवर्क की आवश्यकता होगी.
8 टेक इन, टू absorb और अंडरस्टैंड, मीनिंग अवशोषित करना या समझना। आई नीड अ मोमेंट टू टेक इन ऑल द इन्फॉर्मेशन, मुझे सारी जानकारी को अवशोषित करने के लिए एक पल चाहिए। इट्स हार्ड टू टेक इन एवरीथिंग व्हेन यू आर ओवरवेल्म्ड, जब आप अभिभूत होते हैं तो सब कुछ समझना कठिन होता है। She couldn't take in what he was saying because she was so shocked. वह जो कह रहा था उसे समझ नहीं पाई क्योंकि वह बहुत चौंकी हुई थी। He took in the beautiful scenery during his vacation. उसने अपनी छुट्टी के दौरान खूबसूरत दृश्य का अवलोकन किया। It took me a while to take in the details of the plan. योजना के विवरण को समझने में मुझे कुछ समय लगा। I can't take in too much information at once, it's overwhelming. मैं एक बार में बहुत अधिक जानकारी नहीं समझ सकता, यह अभिभूत कर देती है। She took in the atmosphere of the bustling city. उसने हलचल भरे शहर के वातावरण का अवलोकन किया। I found it hard to take in the news about his promotion. मुझे उसके प्रमोशन की खबर को समझना कठिन लगा। You need to take in the context before making a judgment. आपको निर्णय लेने से पहले संदर्भ को समझना चाहिए। It's important to take in feedback and improve yourself. फीडबैक को समझना और खुद में सुधार करना महत्वपूर्ण है। Act up, to misbehave और malfunction. मीनिंग गलत व्यवहार करना या खराब काम करना। The children tend to act up when they are tired. बच्चे तब गलत व्यवहार करते हैं जब वे थके हुए होते हैं। My computer is acting up again, it keeps freezing. मेरा कंप्यूटर फिर से खराब काम कर रहा है, ये बार बार फ्रीज हो रहा है। He acted up during the class, causing the teacher to get upset. उसने कक्षा के दौरान गलत व्यवहार किया, जिससे शिक्षक को दुख हुआ। The dog acts up whenever it sees a stranger. कुत्ता हर बार जब एक अजनबी को देखता है, गलत व्यवहार करता है। If the device continues to act up, we may need to replace it. यदि डिवाइस खराब काम करना जारी रखता है, तो हमें इसे बदलने की आवश्यकता हो सकती है। She was worried that her son might act up at the party. उसे चिंता थी कि उसका बेटा पार्टी में गलत व्यवहार कर सकता है। Sometimes, technology can act up when you least expect it. कभी-कभी, तकनीक उस समय खराब काम कर सकती है जब आप सबसे कम उम्मीद करते हैं। He tends to act up when he doesn't get enough attention. जब उसे पर्याप्त ध्यान नहीं मिलता है, तो वह गलत व्यवहार करने लगता है। The old car began to act up on our road trip. पुरानी कार हमारी सड़क यात्रा के दौरान खराब काम करने लगी। Don't act up in front of your guests, it's embarrassing. अपने मेहमानों के सामने गलत व्यवहार न करें, ये शर्मनाक है। Get through, to finish or complete something. मीनिंग खत्म करना या पूरा करना। I managed to get through all my assignments before the deadline. मैं समय सीमा से पहले अपने सभी असाइनमेंट को खत्म करने में सफल रहा। It took a lot of effort to get through the tough times. कठिन समय को पार करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। Can we get through this project by next week? क्या हम अगले हफ्ते तक इस परियोजना को पूरा कर सकते हैं? I need to get through this book before the discussion. मुझे चर्चा से पहले इस किताब को खत्म करना है। They are trying to get through the application process quickly. वे आवेदन प्रक्रिया को जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। He struggled to get through the long meeting without falling asleep. वह लंबे बैठक को बिना सोए खत्म करने के लिए संघर्ष कर रहा था। We will get through this challenge together as a team. हम इस चुनौती को एक टीम के रूप में एक साथ पार करेंगे। It's important to get through the difficult times to appreciate the good. अच्छे समय की सराहना करने के लिए कठिन समय को पार करना महत्वपूर्ण है। I can't wait to get through this week, it has been exhausting. मैं इस हफ्ते को खत्म करने का इंतजार नहीं कर सकता, ये थका देने वाला रहा है। Let's get through these tasks before we take a break. चलो इन कार्यों को खत्म करते हैं इससे पहले कि हम आराम करें।